اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین. معزز سامعین و ناظرین، آپ کے شرعی مسائل کے جواب لے کر حاضر ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے نماز تراویح میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے بعض سوالوں کا جواب دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سجدہ سہو کے حوالے سے جو سوالات تھے ان کا جواب دیا تھا. آج بھی مختلف سوالات اسی کے حوالے سے آئے ہیں، جیسے نماز میں تعدیل ارکان سے کیا مراد ہے. چونکہ میں نے کل یہ کہا تھا کہ جو نماز کے واجبات ہیں ان میں سے اگر بھول جائیں، کسی کو بھی ادا کرنا یا بھول کر ترک ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم آتا ہے. تو چند ایک واجبات میں نے ذکر کیے تھے، اور یقیناً باقی جو لوگ سننے والے ہیں انہوں نے نوٹ بھی کیے ہوں گے اور ان کو معلوم بھی ہوگا. تو انہی واجبات میں سے ایک واجب تعدیل ارکان ہے، اور تعدیل عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے سائل نے پوچھا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے. اب تعدیل ارکان ہے کیا کہ آپ احباب کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ نماز مختلف ارکان پر مشتمل ہے، جس میں قیام ہے، تلاوت کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، تشہد ہے. ان تمام ارکان کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنے کا نام تعدیل ہے. تو یہ جو تعدیل ہے یعنی ہر رکن کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنا واجب ہے. اگر نادانستہ طور پر کسی سے کوئی رکن اگر جلدی میں ادا ہو گیا کہ اس کا حق ادا نہ ہوا تو اس پر سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی. اطمینان سے نماز پڑھنے کے حوالے سے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور یہ اس کی منشا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ شارع ہیں، انہوں نے بھی جلدی نماز ادا کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی مسجد میں داخل ہوا، اور وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا. اس نے نماز ادا کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، واپس جا کر نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص واپس گیا، اس نے واپس جا کر اسی طرح نماز ادا کی، اور وہ پھر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا. آپ نے اس کو پھر فرمایا، جاؤ واپس جا کر نماز پڑھو،
क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो शख्स दोबारा वापस गया और उसने नमाज पढ़ी। अलगरज 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस भेजा और तीसरी मरतबा अदा करने के बाद उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, कसम उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मुझे इससे बेहतर नहीं आती, लिहाजा आप मेरी तालीम फरमा दीजिए, मुझे आगाह फरमा दीजिए। अब आका करीम ने उसके बाद उसको, अभी यहाँ एक चीज नोट करें कि उसने नमाज पढ़ी। आका करीम उसका मुशाहदा फरमा रहे थे। उसको देखने के बाद जब वो आपके पास हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, तुम दोबारा पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। ये नहीं पढ़ी, ये जुमला नोट करने वाला है कि उस शख्स ने नमाज तो पढ़ी, लेकिन जो तादीले अरकान या इत्मीनान और सुकून से अरकान की अदायगी थी वो उसने नहीं की। उसने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। तो हुजूर सरीहन वाज़ेहतन फरमा रहे हैं कि तुम जाओ क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इसका मतलब ये हुआ आका करीम के इन अल्फाज से कि अगर कोई शख्स जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है तेजी से तो उसकी नमाज नहीं है। तो उसके बाद जब उसने अर्ज की कि आप मेरी इस्लाह फरमा दीजिए, तो आपने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, नमाज अदा करने लगो, तो तकबीर कहो, यानी तकबीर तहरीमा कहो। फिर कुरान करीम में से जो तुम्हें आसानी से याद है उसको पढ़ो। फिर इत्मीनान के साथ रुकू करो। फिर सर उठाकर सीधे खड़े हो जाओ। फिर इत्मीनान के साथ सजदा करो। फिर सर उठाओ और इत्मीनान से बैठ जाओ और सारी नमाज इसी तरह इत्मीनान और सुकून से अदा करो। ये हदीस मुबारका मुत्तफ़क़ अलैह है। इसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुजज़ा सलातुर रजुल हत्ता युकीम ज़हरा फिर रुकूअ वस्सुजूद। किसी आदमी की नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि वो रुकू और सजदे में अपनी कमर को सीधा न करे। यहाँ पर भी कमर को सीधा करना, इससे मुराद यह है कि ये रुकन जो है इनको इत्मीनान से अदा करना है। तो इन दोनों अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर कोई शख्स नमाज इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, तादीले अरकान सही तौर पर अदा नहीं करता तो उसकी नमाज अदा नहीं होती। हाँ, चूँकि ये तादीले अरकान, इत्मीनान और सुकून से अरकान को अदा करना ये नमाज में वाजिब है। चुनाचे अगर कोई शख्स इस तरह नमाज अदा करता है और उसको याद आ जाए कि कोई रुकन उससे जल्दी में अदा हो गया है, कोताही हो गई है, तो वो सजदा साहव करके अपनी नमाज को सही कर सकता है और उसकी नमाज हो जाएगी। गोया तादीले अरकान यानी इत्मीनान से अरकान को अदा ना करने की वजह से सजदा साहव लाजिम आता है और नमाजी को ऐसा करना चाहिए। इसी तरह सजदा साहब के हवाले से दूसरा सवाल आया था कि कल हमने बयान किया था कि सूरह फातिहा नमाज में ये पढ़ना भी वाजिब है और इसके साथ दूसरी 3 आयात या छोटी सूरत या बड़ी आयत करीमा मिलाना भी वाजिब है। तो ये दोनों क्या हैं? वाजिबात में से हैं। तो आज एक साइल ने पूछा कि अगर सूरह फातिहा के बाद
इंसान नमाजी तिलावत करना या किरात करना भूल जाए तो उसका क्या हुक्म है। तो नोट कर लें कि इसका हुक्म भी यही है चूँकि उसका वाजिब तर्क हुआ है। तो साहिल ने तो सिर्फ ये पूछा है। अब ये दो चीज़ें हैं, अगर नमाज में सूरह फातिहा मिस हो जाए, नमाजी भूल जाए या किरात भूल जाए, दोनों सूरतों में ये वाजिब हैं तो वाजिब तर्क हुआ। वाजिब के तर्क होने पर सजदा सहव लाजिम हो गया। तो अगर ऐसा हो जाए तो सजदा सहव कर लें तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह एक सवाल, चूँकि मुसलसल ये चल रहे हैं तो आता रहता है, एक सवाल रमज़ान के हवाले से ही है कि क्या सहरी खाए बगैर रोज़ा हो जाता है। इसी तरह हमारे इलाके पाकिस्तान की तरफ से एक सवाल आता है कि अगर नमाज तरावीह ना पढ़ें तो क्या तब भी रोज़ा रख सकते हैं। ऐसी चीज़ें आमतुन्नास में मारूफ और मशहूर हैं। चुनाचे जो पहला सवाल है कि सहरी ना खाएं तो रोज़ा रख सकते हैं, हम ये बयान कर चुके हैं कि सहरी खाना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और उसकी बड़ी बरकतें हैं, उसका बड़ा अजर व सवाब है। लेकिन अगर कोई शख्स इतनी देर से उठा कि आज़ान का टाइम हो चुका था या आज़ान हो रही थी तो उसके पास सहरी खाने का टाइम नहीं है, तो अगर वो उसी तरह नियत कर ले रोज़े की तो रोज़ा हो जाएगा। तो गोया सहरी खाए बगैर माह रमज़ान में अगर कोई शख्स रोज़े की नियत उस वक्त कर लेता है तो उसका रोज़ा हो जाएगा। सहरी के बगैर भी रोज़ा रखना दुरुस्त है। दूसरा सवाल जो मैंने इसके साथ देखा वो ये कि बाज़ लोग, चूँकि इसकी एक सामने पिक्चर नज़र आती है कि हम मंदिर देखते होंगे, आजकल तो चूँकि कोरोना है तो कोरोना की वजह से, इस वबा की वजह से अक्सर लोग अपने घरों में बंद हैं, वहीं पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले जब रमज़ान आता था तो हमारी मस्जिदें नमाजियों से भर जाती थी। यहाँ एक में अहम चीज़ जो कि शरीयत में मौजूद है, अल्लाह का फरमान है, आका करीम का हुक्म मुबारक है, सुन्नत मुबारक है, हमें इताअत करनी चाहिए, वो ये है कि 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। वो सारा साल फ़र्ज़ हैं और माह रमज़ान में भी फ़र्ज़ हैं। लेकिन जो तरावीह है ये सुन्नत है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, मुशाहिदा किया कि लोग बाकी फ़र्ज़ नमाज़ों के मुकाबले में नमाज तरावीह का ज़्यादा एहतिमाम करते थे। तो जब इतना कसरत से एहतिमाम करते थे, उसी एहतिमाम की बुनियाद पर यह सवाल आया कि मुमकिन है बाज़ लोगों के ज़हन में ये चीज़ डाली गई कि तरावीह पढ़नी ज़रूरी है ताकि आप रोज़ा रखें, लिहाजा अक्सर लोग इस गरज से नमाज तरावीह पढ़ने के लिए आते थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नोट कर लें कि नमाज तरावीह एक मुस्तकिल अमल है, एक मुस्तकिल नमाज है और रोज़ा मुस्तकिल फरीज़ा है और उसका अपना मुकाम है और नमाज तरावीह का अपना मुकाम है। अगर कोई शख्स नमाज तरावीह बावजूद अदा नहीं कर सकता तो वो रोज़ा रख सकता है। फ़र्क भी नोट कर लें कि नमाज तरावीह सुन्नत है और रोज़ा फ़र्ज़ है। रोज़ा किसी सूरत में भी तर्क नहीं करना चाहिए सिवाय इसके जो शरई उज़्र हैं कि वो बंदा बीमार हो या मुसाफिर हो या दीगर कोई उसको आज़ार लाहिक हो। चुनाचे ऐसा शख्स जो बावजूद नमाज तरावीह अदा नहीं कर सका वो रोज़ा रख सकता है, उसे रखना चाहिए। इसी तरह हमने रोज़े के हवाले से गुफ्तगू की थी, उसमें किस किस को रोज़ा माफ़ है, तो उसमें हमने ये बयान किया था कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियां यानी ख़वातीन को जो मखसूस अय्याम अल्लाह ताला की तरफ से उन पर आते हैं
उन पर रोज़ा माफ़ है। सवाल ये आया कि वो जो मखसूस अय्याम है उनकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। उन 10 दिनों में तो रोज़ा वो तर्क कर सकती है, जिसकी बाद में वो कज़ा करेगी। लेकिन अगर ये जो मखसूस अय्याम है उनका पीरियड बढ़ जाए, यानी 10 दिन की बजाय हमारी किसी बहन बेटी को वो जो अय्याम है, वो जो एक लाहिका है, वो जो चीज़ है, वो अगर 10 दिन से बढ़ जाती है, 11, 12, 13, 14 या उससे आगे भी वो चीज़ जारी रहती है, तो उसमें क्या हुक्म है रोज़े का? तो शरई इस्तिलाह में नोट कर लें कि शरई इस्तिलाह में इसको कहते हैं इस्तिहाज़ा, और वो जो मखसूस अय्याम है उनको कहते हैं अय्याम हैज़। तो इस्तिहाज़ा की सूरत में रोज़ा माफ़ नहीं होता, रोज़े की रुखसत नहीं है। वो जो अय्याम मखसूस हैं 10 दिन, वो पूरे होने के बाद अगर वो सिलसिला जारी रहता है तो उस दिन अगला रोज़ा हमारी माँ बहन बेटी को रखना चाहिए, और वो ज़रूरी है, और वो उसी हालत में रोज़ा रख ले, उसका रोज़ा हो जाएगा। अब इसी तरह एक और सवाल इससे मिलता जुलता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि इंसान को नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं देती, लेकिन नमाज फ़र्ज है। उसमें से एक बीमारी ये है, सवाल में तो एक बीमारी है, मैं 2 जिक्र कर रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। साहिल ने तो पूछा सलसल बौल भी एक बीमारी है, और दूसरा एक रीह की बीमारी है कि बाज़ लोगों को मुसलसल कुछ देर बाद रीह आती रहती है, हवा निकलती रहती है। इन दोनों सूरतों में नमाज का क्या हुक्म है? खा किसी शख्स को रीह की बीमारी हो या सलसल बौल की बीमारी हो। सलसल बौल ये है कि इस बीमारी की वजह से थोड़ी देर बाद पेशाब के कतरे आ जाते हैं, और उस मरीज को इस बीमारी की वजह से पेशाब के कतरे आते रहते हैं। तो इससे वुजू जो है वो टूट जाता है अगर ये आम हालात में हो। लेकिन जिस शख्स को ये रीह की बीमारी हो, हवा खारिज होने की बीमारी हो, या सलसल बौल हो, यानी पेशाब के कतरे उसको मुसलसल आते रहते हों, तो इन दोनों के लिए हुक्म ये है कि ये अच्छे तरीके से वुज़ू करें और वुज़ू करके नमाज शुरू कर दें। नमाज के दौरान अगर दोनों की वो कैफियत, जिसको हवा आती है वो भी आए, या जो सलसल बौल वाला मरीज है उसको भी कतरे अगर आ जाएं, तो उस दौरान उसकी नमाज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो माजूर शुमार होता है और उज़्र अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो चुनाचे इस तरह वो ये दोनों मरीज जो हैं वो नमाज को अदा कर सकते हैं। इसी तरह एक और सवाल भी नमाज तरावीह के हवाले से आया था, लेकिन वो चूँकि अगर मैं जवाब उसका देता हूँ तो काफ़ी वो लंबा है। आज हम इन्हीं सवालों पर इक्तिफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह अगले जो सवालात आएंगे या ये होगा, उसका जवाब हम इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में देंगे। अल्लाह ताला हमें शरीयत को समझने की और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।